Hello students, in first chapter we have learnt about diversity and unity in diversity. Now question arises, what is diversity? Diversity refers differences based on race, caste, sex, religion, region and social and economic backgrounds. India is a diverse country. The people speak many languages, follow the different religions, eat different foods, wear different dresses. This situation is known as the diversity. And we are Indian. It shows the unity in diversity. The freedom struggle fighter fought a struggle not achieved to independence but also equality in the society. The sense of freedom struggle developed the unity among Indians. All people respect the Indian flag, national anthem, and celebrate the Independence Day and Republic Day. These, these elements established unity in diversity. Today, we are going to discuss about diversity and discrimination. Diversity. Diverse means being composed of distinct or different element or qualities. If people develop different religion, different language, different food habits, different dresses, then we found the diverse in society. People are diverse in many ways, such as on the basis of race, ethnicity, social, economic status, age, religion, gender, ability. Our Indian society, based on different languages, different religion, the people of South India speak the Tamil, Telugu, and people of North India speak Hindi. In Northeast region, people speak Manipuri. This shows the diversity in India. Diversity is all around us, at school, at work, and everywhere you go. कहीं भी आप जाइए, आपको ये डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा. डिफरेंट टाइप के फूड्स मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के डांस फॉर्म मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के रिलीजन मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के कल्चर मिलेगा. ये सारे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिलते हैं उसको हम कहते हैं डाइवर्सिटी. लेकिन इसी डाइवर्सिटी में कभी कभी हम एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेशन करने लगते हैं. So, discrimination is the fact of making distinctions or differences between human beings based on the group, classes, or other categories to which they are perceived to belong. People may discriminate on the basis of age, caste, physical appearance, disability, family status, gender identity, marital status, nationality, professions, color, races, and ethnicity, religion, as well as other categories. जब हम इस डाइवर्सिटी में लोगों को एक दूसरे के बीच अंतर करने लगते हैं, एज के आधार पर, जैसे ओल्ड एज, यंग पीपुल, चिल्ड्रेन, कास्ट के आधार पर अपर कास्ट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के आधार पर अगर हम डिफरेंस करने लगे, उसके फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर हम डिफरेंस करने लगे, जैसे
ब्लैक पीपुल, व्हाइट पीपुल, इस तरह का हम अगर फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर डिफरेंस करें, फैमिली के आधार पर, फैमिली स्टेटस के आधार पर, कोई अच्छी फैमिली से है, कोई लो स्टेटस फैमिली से है, उसके आधार पर अगर अंतर करें, या फिर जेंडर के आधार पर बॉयज गर्ल्स, मेल फीमेल के बीच अंतर करें, नेशनलिटी के आधार पर ये इंडियन है, ये दूसरे कंट्री का है, इस आधार पर अगर हम डिफरेंस करें, या उसके कलर जैसा बताया ब्लैक एंड व्हाइट के आधार पर, रेस के आधार पर अगर डिफरेंस करें, उसके नस्ल के आधार पर डिफरेंस करें, उसके रिलीजन के आधार पर डिफरेंस करें, तो इसे हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स which लीड टू डिस्क्रिमिनेशन? The factors which lead to discrimination are stereotype, prejudice, and racism. Stereotype, an idea or statement about all of the members of a group. If people fix an image or an idea or a statement about all of the member of group, then it is known as the stereotype. जैसे आप अगर लड़के ये काम कर लेते हैं, लड़कियां ये काम नहीं कर पाएंगी, लड़कियां इसमें अच्छी होती हैं, लड़के इसमें अच्छे नहीं होते हैं, इस तरह की आइडिया, इस तरह की इमेज अगर अपने माइंड में फिक्स कर लेते हैं, तो इसे हम स्टीरियोटाइप कहते हैं। स्टीरियोटाइप में बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। किसी के प्रति आपकी इमेज पॉजिटिव बन जाती है, किसी के प्रति आपकी इमेज निगेटिव बन जाती है। इस तरह का जो इमेज बना लेते हैं, इसी को हम कहते हैं स्टीरियोटाइप। प्रिजुडिस, प्रिजुडिस, व्हेन पीपल डेवलप ए नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स ए ग्रुप ऑफ पीपल, देन इट इज नोन एज द प्रिजुडिस। जैसे हमारा रिलीजन अच्छा है, दूसरे का रिलीजन खराब है, इस तरह का नेगेटिव एटीट्यूड अगर हम डेवलप कर लें, तो इसे हम प्रिजुडिस कहते हैं। जैसे एक ग्रुप ऑफ पीपुल अच्छे हैं, सुपीरियर है, दूसरे ग्रुप ऑफ पीपुल इंफीरियर है, इस तरह का अगर हम अपने मन में आइडिया बिठा लें, तो इसको हम कहते हैं प्रिजुडिस। व्हेन वी बिलीव दैट मेंबर ऑफ वन रेस और इथनिक ग्रुप आर सुपीरियर टू द मेंबर ऑफ अदर रेसेस और इथनिक ग्रुप, देन इट इज नोन एज द रेसिज्म। ठीक है, जब एक नस्ल के लोग, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट पीपुल, जैसे व्हाइट पीपुल मानते हैं कि व्हाइट पीपुल आर सुपीरियर एंड ब्लैक पीपुल आर इंफीरियर, इफ दिस टाइप ऑफ बिलीफ वी डेवलप, दिस टाइप ऑफ आइडिया वी डेवलप, देन इट इज नोन एज द रेसिज्म। तो these elements develop the discrimination in the society. For example, prejudice. How prejudice develop the discrimination in the society? We fix some ideas about the urban people and rural people, and this is known as the prejudice. For example, life in the city is easy, people here are spoiled and lazy. जो नगर में लोग रह रहे हैं, वो उनकी लाइफ आसान है और वो आलसी होते हैं, लेजी होते हैं। एंड इन सिटी फैमिलीज स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विथ ईच अदर। जो सिटी की फैमिली है, वो बहुत कम समय स्पेंड करती है अपने फैमिली के साथ। इस तरह का अगर विचार हम रूरल और अर्बन पीपुल के लिए बना लें, पीपल इन द सोसाइटी ओनली केयर अबाउट मनी, नॉट अबाउट द पीपुल। लिविंग इन सिटी इज एक्सपेंसिव, ए लार्ज पार्ट ऑफ पीपुल्स अर्निंग इज स्पेंट और रेंट एंड ट्रांसपोर्ट। और इसी तरह से आप अर्बन पीपुल के बारे में, रूरल पीपुल के बारे में बना लें। रूरल पीपल के बारे में ऐसा ही बना लें। मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियन लिव्स इन विलेजेस। पीपुल इन विलेज डू नॉट लाइक टू यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी।
In peak harvesting and plantation season, families spend 12 to 14 hours working in the field. Villagers are forced to migrate to the cities in search of the work. Villagers are forced to migrate to cities in search of work. तो हम देखिए कुछ रूरल पीपल के बारे में अपनी एक आइडिया बना लिए, एक अर्बन पीपल के बारे में आइडिया बना लिए। तो इस तरह की जो हम डेवलप करते हैं आइडिया, ये आइडिया फिर सोशल डिफरेंसेस क्रिएट करती हैं। डिस्क्रिमिनेशन होता है। देयर आर 5 कॉमन टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। Discrimination based on sex, gender discrimination, disability discrimination, age discrimination, racial ethnic discrimination, religious discrimination, यानी हम मेल फीमेल के आधार पर अंतर करते हैं। डिसेबल पर्सन है उसके आधार पर हम डिफरेंस करते हैं। एज के आधार पर डिफरेंस करते हैं। नस्ल के आधार पर डिफरेंस करते हैं। धर्म के आधार पर डिफरेंस करते हैं। जैसे एक देखिए हमारे प्रिजुडिस है, हमारी धारणा है कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट में डिफरेंस है। कुछ लोग जो लोअर कास्ट के काम करते हैं, साफ सफाई काम करते हैं, वो इंफीरियर हैं अपर कास्ट से। जैसे ब्राह्मण जो पूजा पाठ करते हैं उससे इंफीरियर हैं। ऐसी ही एक आपकी प्रिजुडिस निगेटिव थिंकिंग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में दी है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बिलोंग टू विलेज कोरेगांव इन महाराष्ट्र। एक बार ये अपने मुंबई से घर जा रहे थे, रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। उनको घर ले जाने के लिए फादर आने वाले थे, लेकिन फादर नहीं आए। स्टेशन मास्टर उनसे बार बार आके पूछता था कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, गाड़ी से गाड़ी को अरेंज कर दें ताकि आप जा सकें। लेकिन बीच में ही उसने स्टेशन मास्टर ने पूछ लिया कि आप किस जाति के हैं, तो ये महार जाति के थे। इन महाराष्ट्र महार जाति वाज द लोअर कास्ट। तो इसके जैसे ही इन्होंने महार जाति बताया, ठीक है, महार जाति सुनते ही स्टेशन मास्टर का एक्सप्रेशन बदल गया। और वहां आसपास जो गाड़ी वाले खड़े थे वो भी सुने, तो इनको कोई भी गाड़ी से ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, बिकॉज he belonged to the Mahar caste, lower caste, and uh, this Mahar caste was known as the Dalit. So this situation create a stereotype thinking, prejudice type thinking when we make negative attitude about the some caste, such as the Mahar caste. तो इस तरह के जो हम बना लेते हैं, इसको हम कहते हैं प्रिजुडिस। Inequality and discrimination happen when people act on their prejudice or stereotype। अगर हम prejudice और stereotype thinking बना लेते हैं तब इस तरह के differences होते हैं। और ये कई जगह हम differences करते हैं। जॉब प्लेस पर करते हैं, वर्किंग प्लेस पर करते हैं, शॉप पर करते हैं, पब्लिक प्लेसेस पर करते हैं, वाटर टेकिंग वाटर एरिया में करते हैं। जैसे जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो अपर कास्ट के जो कुएं बने थे उससे वाटर नहीं लेने दिया जाता था। पब्लिक प्लेस पर इंटर नहीं किया जाने दिया जाता था। जो महार कास्ट के लोअर कास्ट के लोग थे उनको टेम्पल में इंटर नहीं करने दिया जाता था। अनटचेबिलिटी फॉलो किया जाता था। ये इनइक्वलिटी और डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है। एक कॉमन टाइप के स्टीरियोटाइप थिंकिंग हमारी डेवलप हो गई, जिसको हम देख सकते हैं बॉयज और गर्ल के बारे में। कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है बॉयज और गर्ल के बारे में, उसको आप देखिए। जो जेंडर के आधार पर, सेक्स के आधार पर उसको डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। जैसे दे आर वेल बिहेव्ड, ये किसके बारे में कहा गया है? गर्ल के बारे में। इस तरह की हम एक इमेज आइडिया बना लिए कि गर्ल के बारे में ये कहा गया, गर्ल वेल बिहेव होती है। दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, गर्ल से सॉफ्ट स्पोकन होती है, जेंटल होती हैं।
बॉयज आर फिजिकली स्ट्रांग, बॉय फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। बॉयज आर नॉटी, दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग, ये गर्ल के लिए कहा गया है। दे डू नॉट क्राई, ये बॉयज के लिए कहा गया है। दे आर राउडी, बॉयज के लिए कहा गया है। दे आर गुड एट स्पोर्ट, बॉयज के लिए। एंड दे आर गुड एट कुकिंग, गर्ल्स के लिए। दे आर इमोशनल, गर्ल्स के लिए। तो इस तरह एक ग्रुप ऑफ पीपुल के बारे में हम जो थिंकिंग बना लेते हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, कुछ में बच्चे अच्छे हैं, कुछ में गर्ल्स अच्छी हैं, कुछ में बच्चे अच्छे नहीं हैं, कुछ में गर्ल्स अच्छी नहीं है। तो इस तरह की जो हम पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग बना लेते हैं, इसको हम कहते हैं स्टीरियोटाइप थिंकिंग। वी ऑल्सो डिस्क्रिमिनेट द पीपुल ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन is when we treat someone unfairly or put them at a disadvantage because of their disability। डिसेबिलिटी के कारण उसका जो डिसएडवांटेज है उसके आधार पर अगर हम कोई डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो उसे हम डिसेबिलिटी कहते हैं। जैसे अगर पैर किसी बच्चे का खराब है तो आप कहते हैं कि हम दौड़ जाएंगे, ये नहीं दौड़ेगा। तो इस तरह की जो डिसेबिलिटी के आधार पर हम जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, इसको डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। ए डिसेबिलिटी इज ए लॉन्ग लास्टिंग इम्पेयरमेंट दैट लिमिट्स ए मेजर लाइफ एक्टिविटी। जो डिसेबिलिटी है ये लॉन्ग लास्टिंग आपकी इम्पेयरमेंट है जो आपकी मेजर एक्टिविटी को लिमिट करती है। डिसेबिलिटी कैन इंक्लूड मेंटल और फिजिकल चैलेंजेस, ये दोनों हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है, फिजिकल भी होती है। तो डिसेबिलिटी के आधार पर अगर हम सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो इसको डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल इथनिक डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन ए पर्सन्स इथनिसिटी और रेस। उसके रेस के आधार पर, उसके नस्ल के आधार पर, उसके कास्ट के आधार पर अगर हम डिफरेंस करते हैं, ठीक है, कास्टिज्म करते हैं, देन इट इज नोन एज द रेशियल इथनिक डिस्क्रिमिनेशन। उसका रेस के आधार पर, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट पीपुल का रेस अलग अलग है, ठीक है, ट्राइबल पीपुल का रेस अलग अलग है, रिलीजन उसका अलग है, लिंग्विस्टिक अलग है, कल्चरल बैकग्राउंड अलग है। उसके आधार पर अगर हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो इसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। समटाइम्स वी डिस्क्रिमिनेट द पीपुल ऑन द बेसिस ऑफ एज, old age, young age and children, this is known as the age discrimination। And we also discriminate the people on the basis of religion। Religious discrimination is treated a person or group differently because of their particular beliefs which they hold about a religion। religion के बारे में हमारा विश्वास एक अलग होता है, इस विश्वास के कारण, इस फेथ के कारण हमारा जो रिलीजन है वो दूसरे रिलीजन से डिफरेंट हो जाता है। और इसके आधार पर अगर हम डिफरेंस करते हैं तो उसे हम रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। जैसे हिंदू मुस्लिम में डिफरेंस करना, हिंदू क्रिश्चियन में डिफरेंस करना, ठीक है, इस तरह का जो डिफरेंस करते हैं ये हम रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के नाम से जानते हैं। अब ये डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, इसलिए हमने इक्वलिटी के लिए कोशिश किया। वी आर स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल also included within the struggle of large group of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally। फ्रीडम स्ट्रगल में हमने फ्रीडम के लिए ही स्ट्रगल नहीं किया बल्कि इसके लिए भी स्ट्रगल किया कि हमें इक्वलिटी मिले। मेनी दलित्स ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल। बहुत सारे ऐसे दलित थे जिन्होंने टेम्पल में एंट्री के लिए, मंदिर में प्रवेश के लिए फाइट किया, स्ट्रगल किया। वोमेन डिमांडेड दैट दे शुड हैव एज मच ए राइट टू एजुकेशन एज मेन डिड। वोमेन ने ये स्ट्रगल किया कि जैसे पुरुष पढ़ते हैं उस तरह से हमको भी पढ़ने का अधिकार दिया जाए। पीजेंट्स एंड ट्राइबल फाउट टू रिलीज देमसेल्फ फ्रॉम द grasp of money lenders and the high interest they were charged। पीजेंट्स ने भी
स्ट्रगल किया कि जो मनी लेंडर सेठ साहूकार उनको पैसे देते हैं, उस पर जो हाई इंटरेस्ट लेते हैं उसको हटाया जाए। इसके लिए पीजेंट्स ने भी स्ट्रगल किया। आफ्टर इंडिपेंडेंस आवर कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश्ड द ऑल काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड इंश्योर। आजादी के बाद जैसे हमें आजादी मिला, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये सारे तरह के डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर दिया और ये इंश्योर किया कि पीपुल आर फ्री टू चूज द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू। गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपुल। पीपुल किसी भी वर्ग को चुनने के लिए जो उसकी इच्छा है वो तैयार है। जैसे देखो, पहले ब्राह्मण को काम था पूजा पाठ करना, क्षत्रिय का काम था लड़ाई करना, वैश्य का काम था एग्रीकल्चर ट्रेड करना, और शूद्र का काम था साफ सफाई का काम करना। उस कास्ट में पैदा होने वाले जितने लोग बच्चे थे वो सब इसी वर्ग को फॉलो करते थे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एस्टेब्लिश किया कि कोई भी पीपुल किसी तरह का भी काम चुन सकता है जैसी उसकी इच्छा है। गवर्नमेंट जॉब सबके लिए खुला है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो किसी भी रीजन से बिलोंग करता हो, उसके लिए ओपन है। पीपुल मस्ट हैव द फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन, स्पीक देयर लैंग्वेज, सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली। पीपुल फ्री हैं कोई भी अपना रिलीजन फॉलो करने के लिए, अपने लैंग्वेज बोलने के लिए, अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए, और फ्री स्वतंत्र होकर अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए। द पीपल आर इक्वल बिफोर लॉ। एवरी पर्सन राइट फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू द डेली वेजर हैज टू ओबे द सेम लॉ। चाहे वो प्रेसिडेंट हो या प्रतिदिन मजदूरी पर काम करने वाला व्यक्ति हो, वो एक तरह का सब सेम लॉ फॉलो करता है और उसको सेम लॉ के अंदर ट्रीट किया जाता है। नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, क्लास, रिलीजन, जेंडर, रेस, प्लेस ऑफ द बर्थ। अगर हम कोई डिफरेंस नहीं करेंगे कास्ट के आधार पर, क्लास के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, जेंडर के आधार पर, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर किया है। इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। ऑल पीपल हैव इक्वल राइट टू पब्लिक प्लेसेस एंड एमिनिटीज लाइक प्लेग्राउंड, मार्केट, शॉप्स, रोड्स, वेल्स। जैसे देखिए, ब्रिटिश पीरियड में भी अंग्रेजों के लिए अलग रेलवे में वैगन होता था, जो ब्लैक पीपुल थे उनके लिए अलग डब्बे होते थे, उसमें आप नहीं जा सकते थे जो अंग्रेज के लिए रिजर्व थे। होटल भी अंग्रेजों के लिए अलग रिजर्व था, इंडियंस के लिए अलग था, पार्क अलग थे, सबके पहुंच नहीं थी पब्लिक प्लेसेस तक। हमारे सोसाइटी में भी दलित लोग की पहुंच टेम्पल में, पब्लिक प्लेसेस में नहीं था, कुएं पर नहीं था, वेल से वो पानी नहीं ले पाते थे। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस our constitution ensures equal access to public places, यानी सब लोगों को पब्लिक प्लेस पर जाने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया गया। सबको सब जा सकते हैं पब्लिक प्लेस पर। एंड वी एबॉलिश द अनटचेबिलिटी, जो बहुत ही बड़ा समाज के लिए घातक था, डिफरेंस था, डिस्क्रिमिनेशन था, उसको हमने खत्म कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने खत्म कर दिया। अनटचेबिलिटी अब हमारी सोसाइटी में नहीं है। तो इस तरह से देखिए, डाइवर्सिटी से हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, और डिस्क्रिमिनेशन किस बेस पर करते हैं? हमारा स्टीरियोटाइप जो थिंकिंग है, हमारा प्रीजुडिस टाइप थिंकिंग है, या हमारा रेसिज्म टाइप का थिंकिंग है, इससे हम उनके बीच डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं सोसाइटी में करनी चाहिए, क्योंकि इस डिस्क्रिमिनेशन से हमारा सोसाइटी में डिवीजन होता है। हमें इक्वल बन के रहना चाहिए, और आफ्टर इंडिपेंडेंस वी ऑल आर इक्वल। थैंक यू।